Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to Sunday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from your listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on our direct numbers 2331 4444, 2371 7106 and 2331 0464. Our numbers once again are 4444, 2371 7106 and 2331 0464, and please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में स्वागत है। धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ अर्जुन चौधरी। India will continue to grow at a faster pace even though the entire world is caught in a whirlpool of uncertainty, says Prime Minister Narendra Modi. FPI is pumping over 51,000 crore rupees into the Indian capital market so far in March. And India needs to focus on manufacturing to counter China, says Union Minister Dr. S. Jaishankar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरी दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत ज्यादा तेजी से विकास करता रहेगा। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में मार्च में अब तक 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, चीन से निपटने के लिए भारत को विनिर्माण पर फोकस करना होगा। In our top story, Prime Minister Narendra Modi asserted that India will continue to develop at a faster pace even though the entire world is caught in a whirlpool of uncertainty. Speaking at the India Today conclave in Delhi yesterday, Mr. Modi highlighted that the mood of the nation is to make India the world's third largest economy. He also said that he does not work on delivering headlines but deadlines. Prime Minister noted that during the pre-2014 period, there were only a few hundred registered startups, whereas this number stands at around 1.25 lakh today. He emphasized that the real identity of India's startup revolution is that these startups are spread in more than 600 districts of the country, which is 90% of the area of the country. He said the youth of Tier 2 and Tier 3 cities are leading the startup revolution, and the grand success of young people belonging to small cities is driving the startup revolution of Bharat. Mr. Modi pointed out that village women who would never have even ridden a bicycle are now becoming drone pilots. The Prime Minister remarked that this will have a multiplier effect in the growth of the society. आइए हम अपने पहले कॉलर के पास चलते हैं। किरण है हमारे साथ जुड़े हुए हैदराबाद से। किरण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Yes, sir. Good evening, Market Mantra team. I am having that one question about that. Hello. जी बताएं। Yes, sir. Is it mutual funds trust states about that they are about it's relating to that mid cap funds and small cap funds. So, what is the position for this one? Can we continue with these schemes, mid cap and small cap, or we can redeem? Absolutely. If you are on an investment plan
started your small cap and mid cap fund investment by way of SIP, and you still have 3 to 5 years time frame in your mind, then just ignore the noise, carry on with your investment. This is something, this is something which happens almost all the time, that one segment of the market is in favor, and investors are pouring money into that category. In 2008, it was the infrastructure. Some other time, it was some other sector. So it could be some other theme, which gains the fancy of investors, and they start putting more money. This time round, because it is a lot of individual investors' money which is finding its way into mutual fund and also the small cap fund, the regulator got concerned about any inherent risk in this, and went about doing this stress. But I think most ordinary investor who will have a 5-year time frame investing in equity fund and more so, this kind of thing actually creates a good opportunity for long-term investor to continue investing, simply because it brings about a degree of moderation in the market on prices, and it's a good entry point. If you are maxing these funds without much of a plan, and you are a short-term investor, and you are an accidental beneficiary of the gains in the market, and you are still sitting on gains, then maybe take your money out. But any long-term investor with 3 to 5 years time frame in mind should just ignore this and carry on with his investment. Dhirendra, tell us for the benefit of our listeners. We have a caller right now, Anubhav from Patna. Anubhav ji, a warm welcome to our program. Please ask your question to our expert. लगता है अनुभव से हमारा संपर्क टूट गया है. Dhirendra ji, can you tell us what the stress tests recommended by SEBI are for mutual fund companies, and how important are they for redemption? No, there is absolutely no step mandated by SEBI. All SEBI said that these categories of funds are getting a lot of money. Investors and mutual funds should be sensitive to this. They wanted them to do a exercise that if they have to sell their investments, how will it take? And if every fund company did this investment and came with the day before yesterday, that how much it will take based on the current liquidity situation in the market to sell 50% of the portfolio, 50% of the liquid portfolio. So do the assessment that what is the degree of investor concentration in these funds. How, top 5% or top 10% investors account for what percent of the total assets. That is primarily to assess the vulnerability of the fund because of the action of some investors. So I don't think there is any it is just causing greater awareness, sensitivity, but there is no mandate from SEBI for fund companies to conduct in its manner. जी, अगले कॉलर हैं मुंबई से दीप्तेश. दीप्तेश, स्वागत है आपका. सवाल पूछें. The question है regarding exit load on withdrawal of a mutual fund money. My mutual fund is last date is on March this month. The last installment is to go. अच्छा. और उसके बाद अगर मैं नहीं रिन्यू करूंगा, that mutual fund will continue. But अगर मुझे पैसा विड्रॉ करना है, doing away with exit load कैसे कर सकता हूँ? Is there any way? Is my question. The exit load one cannot. There is an exit load mostly in equity fund and the debt funds, that if you withdraw your investment before a certain time, then this is the this much of exit load is it is not actually exit load. It is contingent deferred sales charge, means it is contingent on the period of stay in a fund. So if you have been invested in a fund for a specified period, you can avoid that. So to avoid the CDSC, you will have to stay in that fund for that period. There's one more thing which you should keep in mind, that there are funds where the exit load or CDSC is levied
is not saved for the first, up to 10% or things like that. So, but that is mostly in the case of hybrid fund. But there is no way to scale the exit load if it is applicable based on your date of investment. And the principle being followed for calculating the exit load in case of your SIP is first in and first out. So if you started SIP a year ago, the first month thing will have 1 year will apply on the unit in the first on the day of investment. Subsequent months will be 365 from that day, so on and so forth. And before we take our next caller, Vikas from Kolkata, we're taking a short break, so please stay tuned on Market Mantra. वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र और हमारे अगले कॉलर हैं कोलकाता से विकास। विकास, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते मार्केट मंत्र। नमस्कार। मेरा एज 36 है जी। अभी म्यूचुअल फंड में 6 लाख के तरह की इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न भी 3 डिजिट आ रहा है। 6 साल हो गया और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। छोटा एक लड़का है, उसका एज 5 ईयर, तो उसके नाम पे कुछ करना चाहिए। अब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? जी हाँ, अब मैं आपको ब्रॉड प्रिंसिपल बता देता हूँ कि आप कुछ भी काम करते हो, जो भी कमाते हैं और जो भी पाते हैं, आप अपने बच्चे के नाम से भी निवेश कर सकते हैं। उसका एक फायदा होता है कि आपका जो लगाया हुआ पैसा है, जब बच्चा एडल्ट होगा, 18 साल का होगा, तो ये पैसा बिना किसी इंसिडेंस के ये संपत्ति उसकी हो जाएगी। और लेकिन ये करना कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आप उसकी पढ़ाई के लिए या किसी और चीज के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो आप अपना निवेश जारी रखिए। जो प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना चाहिए कि लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाए, कम समय का पैसा कभी इक्विटी में ना लगाए। इक्विटी में लगाने वाला पैसा एसआईपी के जरिए ही लगाए। कोशिश करिए कि ऐसे फंड में निवेश करें जो कि अच्छा खासा डाइवर्स हो, डाइवर्सिफाइड हो। ये स्मॉल कैप, मिड कैप या कोई खास तरीके का फंड जो कि हाल फिलहाल अच्छा कर रहा हो, जो कि बड़ा आकर्षक लगता है, उसमें लगाने के बजाय एक ऐसे फंड में लगाए जो हर जगह निवेश करता है और आमतौर पे एक अच्छी अवधि में वो अच्छा करता रहेगा। और बच्चे के नाम से लगाना हो तो लगाया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि उसका बैंक खाता खोलना पड़ेगा और बैंक खाते को ऑपरेट आप करेंगे जब तक वो माइनर है, और उसके बाद फिर ये निवेश का बच्चे का हो पाएगा बिना किसी टैक्स से। Our next caller is from Jabalpur, Yadav Mishra. I hope I've got the surname right. Please ask your question to our expert. सवाल पूछिए प्लीज। 10 साल का व्यू है, दोनों फंड में क्या रिस्क है? एक क्वांट फ्लेक्सी कैप वर्सेस और एक फ्लेक्सी कैप है, उनका नाम है फाइनेंशियल जे फाइनेंशियल JM जी। कितना रिस्क है और लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा? 10 साल का तो 10 साल के नहीं, ये दोनों फंड अभी हाल फिलहाल अच्छा कर रहे हैं। क्वांट फंड का एक काफी अलग नजरिया है फंड मैनेज करने का, और पिछले 4-5 साल में जब से ये नया मैनेजमेंट आया और इनका प्रदर्शन काफी इम्प्रेसिव रहा है। और पिछले 5 वर्ष के आधार पे अगर मुझे कहना हो तो अगर ये किसी भी तरह से अगर जिस तरह का इन फंड ने किया है उसका आधा प्रदर्शन भी अगर तुलनात्मक तौर पे रहा तो भी ये बेहतरीन फंड साबित होगा। तो इसको देखना चाहिए। जेम म्यूचुअल फंड, लेकिन मेरी सलाह होगी कि इसके जो फंड चलाने का जो तरीका है, अभी तक इस फंड कंपनी ने एक गिरावट का दौर लंबे समय का नहीं देखा है, तो उस समय ये कैसा करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, और उसका भी मुझे इंतजार है।
इसमें पूरी तरह मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए। और वहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है। ये बहुत पुराने फंड है और हाल फिलहाल यहाँ पे मैनेजमेंट कुछ नए फंड मैनेजर्स आए हैं जिनका कि इन फंड्स में दिख रहा है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड 10 साल के नजरिए से चुनना एक अच्छा कदम है और इसके लिए दूसरे ढेर सारे आपके पास अच्छे विकल्प होंगे। क्वांट और इसमें अगर लगाना भी हो तो अगर आपको ढेर सारा पैसा लगाना है तो इस तरह के फंड में आपका एक छोटा भाग होना चाहिए। सारा पैसा इन नए अच्छे प्रदर्शन वाले फंड में न लगा। Dhirendra, what is the prospect for small cap funds right now? I don't know. Small cap funds, in fact, looking at the kind of flow is still carrying on with the small cap, and given that many small cap or prominent small cap funds have taken a 10% hit, even after entirely because of the noise around the stress test and this and that. Many funds are down. The average funds are down about 6-7% over the last 1 month. Some of the prominent ones are down about 8-10%. And a part of small cap funds are very different from each other. It is not about all small cap funds are not alike. Unlike large cap funds where most of them are very different. In case of small cap, all are very different from each other, depending on their scale, depending on their focus, depending on their strength. Looking at the largest small cap fund, which has a over 15-year history and has also been the best performing fund, has given a phenomenal return, and it has a portfolio of over 250 stocks. I was very apprehensive, but this fund continues to be to stack at the top. So small caps are impressive. If the India story carries on, we will keep getting pleasant surprises here. Small caps have its own risk in terms of liquidity risk, but liquidity risk is not the big risk for long term. You can easily scrape through this liquidity risk with your long term view. जी, अगले कॉलर है दिल्ली से योगेश शर्मा। योगेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी, शुक्रिया आपका। नमस्कार धीरेन्द्र सर को। सर काफी दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है तो बड़ी खुशी हुई आपको देख करके। सर मेरा जो सवाल है वो ये है कि अभी हाल ही में सेबी के जो शायद मैम है, उनका एक कमेंट आया था कि काफी फ्रॉड और ओवर वैल्यूएशन, मतलब काफी लोग एकदम से आने लगे स्मॉल कैप स्पेस में, मिड कैप स्पेस में, शायद रिसेंट रैली को देख करके। तो क्या इसमें अभी कुछ सतर्कता होने की जरूरत है या जो लंबे समय के निवेशक हैं वो अपना निवेश जारी रख सकते हैं? और एक दूसरा सवाल सर जो था वो ये था कि अगर लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप हमारे पास में, दूसरा सवाल सर ये था, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो एक हाइब्रिड फंड होने के बाद भी इतना जबरदस्त जो उसने रिटर्न दिया है, इतने सालों से लगातार दे रहा है, तो इसके पीछे सर क्या राज है? जो सेबी के चेयरपर्सन ने जो कहा था कि इस सेगमेंट में फ्रॉड है, उसके दो भाग थे। एक तो कि यहाँ जो स्मॉल कैप फंड्स है, मिड कैप फंड्स है, उसमें पैसा काफी आ रहा है, लेकिन उसका एक दूसरा भी पार्ट था कि हमारे यहाँ भारत में छोटी कंपनियों के लिस्टिंग के लिए एक बहुत ही लिबरल स्कीम बना हुआ है और वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज का एक भाग है, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज, जहां पर NSE और BSE में छोटी कंपनियों के लिस्ट करने के लिए ये प्रावधान है, जहां पे उन कंपनियों को अपना IPO लाने के लिए वो सारी नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है जो एक बड़ी कंपनी को करना पड़ता है, और वहां पे बड़ी आसानी से और वहां के बारे में मुझे लगता है कि उनका काफी फोकस उस पे था और लोगों को लग रहा है कि ये स्मॉल कैप फंड जिसमें कि हम लोग भी करते हैं उसके बारे में इनके बारे में भी उनकी चिंता थी, लेकिन जो वो फ्रॉड उसके बारे में काफी चिंता अपनी जाहिर कर रही थी और उसके बारे में बता रही थी कि काफी सारे कदम उठाने पड़ेंगे और वहां पे और भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा ताकि वहां पे किस तरह की सिस्टम में खामी है तो उसे फिक्स किया जाएगा। तो स्मॉल कैप के बारे में आपको निश्चिंत रहना चाहिए कि जब भी कभी बाजार गिरेगा तो स्मॉल कैप ज्यादा गिरेगा, लेकिन आप जब 10 साल का रिटर्न देखते हैं और स्मॉल कैप में आपको 10 साल का सालाना रिटर्न जब 22% मिलता है और एवरेज लार्ज कैप इक्विटी फंड में 14% मिलता है,
तो ये 14 से 22 का जो अंतर है वो आपको इसलिए मिलता है ताकि क्योंकि आपने बहुत उतार चढ़ाव झेला है। अगर उतार चढ़ाव को झेलने का ये रिवॉर्ड है कि आपको ये 14% सालाना रिटर्न के बजाय एवरेज स्मॉल कैप फंड में आपको 22% रिटर्न मिला है। तो अगर आप इस नजरिए से और कम समय में ये फंड बहुत ही रिस्की साबित हो सकते हैं, और उनके बारे में चिंतित होना, निवेशकों को भी चिंतित होना चाहिए और रेगुलेटर भी उनके बारे में चिंतित होता है कि कुछ लोग अगर रिस्क को समझे बगैर, अगर कम समय में, चूंकि बहुत आसानी से ये इंडेक्स बढ़ते जा रहा है, स्मॉल कैप फंड बढ़ते जा रहे हैं, आपने तुरंत पैसा लगाया, तुरंत बढ़ गया और आपने निकाल लिया और आपका इसमें भरोसा बन जाता है, और अचानक फिर आपको जब इस गिरावट का दौर झेलना पड़ेगा तो उसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। और पिछले 4-5 साल में जितने नए निवेशक आए हैं उनको शायद इसका आभास नहीं होगा, उसको इसका अंदाज नहीं होगा कि स्मॉल कैप के गिरावट के दौर में जो स्मॉल कैप की बदहाली होती है उसमें आपकी क्या स्थिति हो सकती है। We're heading for a short break, so please stay tuned on Market Mantra. अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र और हम चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास। जयपुर पवन किशोर हमारे साथ लाइन पर हैं। पवन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी, मैं नवल किशोर शर्मा बोल रहा हूँ। जी नवल किशोर जी क्षमा करें। मुझे सुन पा रहे हैं आप सर? जी बताएं। जी नमस्ते मार्केट मंत्रा। जी नमस्कार। मेरे सवाल 2 हैं। जो अपना म्यूचुअल फंड है इसमें मिड कैप में इन्वेस्ट करें या लार्ज कैप में करें, और दूसरा ये कि अगर इसमें हम लोग उसको प्रीमेच्योर करते हैं तो कोई लॉक इन पीरियड है या पेनल्टी इम्पोज होगी? हाँ, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का उद्देश्य होता है या जिसके लिए वो बहुत लाभकारी है कि एक तो ये आपको बहुत सुविधा देता है। 500 रुपए से 2000 रुपए से आप एक अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं, और आपके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप में फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि मेरी सलाह सालों साल मार्केट मंत्र पे और हर जगह यही रहती है कि किसी भी शुरुआती निवेशक को एक अच्छे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये एक बैलेंस फंड जिसमें कि 1/4 पैसा डेट में रहता है, 3/4 पैसा इक्विटी में रहता है, और ये एक शुरुआती निवेशक के लिए अच्छी शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे जब बाजार में गिरावट का दौर आता है तो ये फंड बहुत ही रफ्तार से नहीं गिरते हैं। तो आमतौर पर लोगों को यहाँ से शुरू करना चाहिए। उसके बाद अगर आप पूरे ऑल इक्विटी फंड में से शुरुआत करना चाहते हैं तो एक किसी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में पैसा लगाएं। मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड अच्छा शुरुआती कैटेगरी नहीं है, क्योंकि यहाँ भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है दूसरे फंड की तुलना में, तो उनका चुनाव करें। आपका दूसरा प्रश्न कि क्या कोई पेनल्टी लगता है? बिल्कुल लगता है। अधिकतर इक्विटी फंड में एक एग्जिट लोड लगता है कि अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकाल, आमतौर पे ये फंड अलग अलग फंड में अलग अलग ये नियम है और इसकी जांच कर लें आप निवेश करने के पहले, लेकिन आमतौर पे अधिकतर इक्विटी फंड में 1 साल से पहले पैसा निकालने पे 1% का एग्जिट लोड लगता है। जी, अगली बड़ी खबर पे नज़र डालते हैं। विदेशी निवेशकों ने मार्च में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 51,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उन्होंने शेयर बाजार में 40,710 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि ऋण बाजार में इस महीने अब तक उनका निवेश 10,383 करोड़ रुपए का है। इस तरह भारतीय पूंजी बाजार में इस महीने अब तक एफपीआईज का कुल निवेश 51,093 करोड़ रुपए हो गया है। इससे पहले फरवरी में उन्होंने भारत के शेयर बाजार में 1,539 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 22,419 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इससे पहले एफपीआईज ने जनवरी में देश के ऋण बाजार में 19,800 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जो ऋण बाजार में उनके निवेश का 6 सालों का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इससे पहले उन्होंने जून 2017 में भारतीय ऋण बाजार में 25,685 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन इस वर्ष जनवरी में उन्होंने देश के शेयर बाजार से 25,743 करोड़ रुपए निकाले थे।
2023 में एफपीआईज ने भारत के ऋण बाजार में दिसंबर में 18,302 करोड़ रुपए, नवंबर में 14,860 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 6,381 करोड़ रुपए का निवेश किया था। Next caller is Mahesh from Delhi. Mahesh ji, a warm welcome to you in the program. Please ask your question to our expert. नमस्कार। मेरा दो क्वेश्चन है। एक्चुअली आज के तारीख में देयर आर मल्टीपल इंडेक्स फंड्स और देयर, तो इज इट एक्चुअली एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट थ्रू दैट only, like you can nowadays Pru has launched as mid cap 50 25 25, otherwise traditionally it used to be Nifty 50 like that only. Now my another question, रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान का जो दोनों में एक्चुअली तो बेसिकली पहले जो वैल्यू जो होता था उनकी जो चार्जेस वगैरह जो भी है, नाउ इट इज ऑलमोस्ट जीरो, सो व्हाट डू यू सजेस्ट? नहीं, दूसरा सवाल मुझे नहीं समझ में आया कि डायरेक्ट और रेगुलर में क्या आपको अंतर लगा है? जी, डायरेक्ट और रेगुलर में इनका कहना था कि रेगुलर में पहले जो चार्जेस थे वो अब इनकी राय में लगभग जीरो हो गए हैं, इसलिए दोनों अलग अलग प्लान की जरूरत क्या है? अच्छा, नहीं, अधिकतर फंड में ऐसा नहीं हुआ है। डायरेक्ट प्लान का आधार ही ये है कि उसमें जो अब जो रेगुलर प्लान का जो कमीशन है वो घटा करके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। और ये एक जो सेबी के नियम है एक्सपेंस चार्ज करने के लिए, वो बहुत ही सीधा है कि जो भी रेगुलर फंड का कमीशन है उसको घटा करके वही डायरेक्ट फंड का एक्सपेंस होना चाहिए। और तो अगर कोई भी फंड अगर अपने फंड को बेचने के लिए कोई कमीशन देता है, कम देता है या ज्यादा देता है, जहाँ पे ज्यादा देता है वहां पे डायरेक्ट प्लान से उसका खर्चा कम होगा, बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। जहाँ पे कम कमीशन मिलता है वहां पे कम होगा। दूसरा कि क्या आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारे नए विकल्प आ पाए हैं, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप जब लार्ज कैप फंड में पैसा लगाते हैं तो वहां पे आपको जरूर देखना चाहिए, और वहां पे आपका जो चुनाव का आधार होना चाहिए वो केवल खर्चा ही है, एक्सपेंस रेशियो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप वहां देखें कि बहुत सारे ETF हैं जो कि 0.03% पे उपलब्ध हैं, या बहुत सारे इंडेक्स फंड जो कि बहुत सुविधाजनक तरीके से आपको वहां पैसा लगाने की सुविधा प्रदान करते हैं, और उनका खर्चा भी बहुत ही कम है। अगर आप SBI के उस ETF को देखें जो कि सबसे बड़ा हो गया है, तो बड़ी हैरानी होती है देख के कि इतने कम खर्चे पे आपको ये सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पे जो खर्चा है ये 0.04% है। तो अपने लार्ज कैप एलोकेशन के लिए जरूर आप इंडेक्स फंड का चुनाव करें। ये जो आपको एक सोफिस्टिकेटेड इंडेक्स फंड का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, इन्हें अभी थोड़ा समय दीजिए, इनको अपना आधार या अपना इनका अपना जो इफेक्ट है ये प्रूव करने दीजिए। Right. Well, let's have a look at a third headline story. External Affairs Minister S. Jaishankar has said that India needs to be prepared domestically by focusing on manufacturing to counter China. Speaking at a conclave organized by Media Group, the minister said it is not just about the boundary issue. There are major economic issues as well. He added, Dr. Jaishankar said, if you need to deal with China, you need to have an economy which is geared up for it. The External Affairs Minister said it was only in the last decade that India started focusing on manufacturing sector to take on China. धीरेन्द्र, कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And before we close, a look at the headlines once again. India will continue to grow at a faster pace even though the entire world is caught in a whirlpool of uncertainty, says Prime Minister Narendra Modi. FPI is pumping over 51,000 crore rupees into the Indian capital market so far in March. And India needs to focus on manufacturing to counter China, says Union Minister Dr. S. Jaishankar. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ NPS समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra.